This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can, of course, call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं। श्रोताओं, आज रविवार है और हम आपके फोन कॉल्स भी सीधे प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। म्यूचुअल फंड्स और इससे जुड़े मुद्दों पर कोई भी जानकारी आप आज के कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं: 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले STD कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए म्यूचुअल फंड्स विशेषज्ञ स्नेहा सूरी हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं। स्नेहा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu, and Sneha. Once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. After 8 sessions of consecutive decline, domestic markets to focus on monthly auto sales, tariff announcements and other global indicators for Qs next week. Government e-marketplace GEM initiatives have contributed significantly to the ease of doing business, says Ministry of Commerce and Industry. And global crude oil prices register first monthly fall since November. Brent falls to $73 per barrel. 8 सत्रों में लगातार गिरावट दर्ज करने के बाद अगले सप्ताह के लिए घरेलू शेयर बाजारों की नजर ऑटो क्षेत्र की मासिक बिक्री, टैरिफ से जुड़ी घोषणाओं और अन्य वैश्विक संकेतों पर टिकी होगी। सरकारी ई बाजार GEM की पहलों ने व्यापार करने की सुगमता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कहा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में नवंबर के बाद की पहली मासिक गिरावट, ब्रेंट क्रूड का मूल्य गिरकर $73 प्रति बैरल तक आ गया। So look at the markets next week. After suffering their biggest intraday drop of 2025 and extending losses to the 8th straight day, the domestic markets are likely to monitor some key market triggers in the first week of March. Monthly auto sales, Donald Trump's tariff announcements, foreign fund outflow, domestic and global macroeconomic data, and global market cues will dictate market direction next week. Last week, domestic markets extended their losing streak for the third consecutive week. The Sensex declined 2,113 points or 2.8% during the week to close at 73,198. The Nifty slumped 671 points or 2.9% to close at 22,125. The Sensex has slumped 12,780 points or 15% from its record peak of 85,978 in September last year. And the Nifty has crashed 4,153 points or 16% from its record high of 26,277 in September. Meanwhile, as the new month begins, market participants will closely track high-frequency data, including auto sales and PMI figures. India's composite PMI output for February will be released on Wednesday. Across the globe, US Fed Chairman Jerome Powell's speech and the impact of major tariffs by the US President will also be keenly watched. Manufacturing PMI data in the US, UK and China will be released next week. और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ गए हैं विवेक सहारनपुर से। विवेक जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ, मार्केट मंत्रा की पूरी टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, मेरी उम्र 35 वर्ष है और मैं गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन हूँ। मैं म्यूचुअल फंड से 7 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ। अब मुझे अपना जो पोर्टफोलियो है वो एग्रेसिव बनाना है, जिसके लिए मुझे किन फंड्स में निवेश करना चाहिए। मेरा टाइम होराइजन 10 to 15 ईयर्स के लिए है। और मेरा दूसरा सवाल है, आज के इस मार्केट में क्या मुझे लमसम अमाउंट, जैसे मेरा मंथली सिप जो है वो 12,000 का है,
अगर मैं लमसम अमाउंट 10,000 या 5,000 निवेश करना चाहता हूँ तो क्या ये मेरा निर्णय सही है? मुझे इस समय करना चाहिए? जी विवेक जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप मार्केट के इस दौर पर आकर भी इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहते हैं, विच इज वेरी कॉन्ट्ररी टू जो काफी सारे इन्वेस्टर्स अभी जिस साइकोलॉजी से गुजर रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर ये आपका थॉट इसीलिए ही आया है क्योंकि आप 7 साल से म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि किस तरीके के रिस्क के साथ ये आपको किस तरीके का रिटर्न दे सकते हैं सिर्फ अगर आप बने रहें, जैसे आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो जो आपने बोला कि आप 10-15 साल तक का और आगे टाइम होराइजन रखते हैं एंड आप अपना पोर्टफोलियो अग्रेसिव करना चाहेंगे, तो अग्रेसिव पोर्टफोलियो करने के लिए हम इक्विटी एसेट क्लास को ही अपनी प्राइमरी एसेट क्लास बना सकते हैं, जिसमें जो आपका कोर पोर्टफोलियो होता है आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जैसे फंड्स रख सकते हैं, बट कुछ 25 से 30% आप मिड और स्मॉल कैप्स में अपना एक्सपोजर रख सकते हैं, बिकॉज ये छोटी कंपनियां होती हैं तो इनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा रहता है। ऑल्सो बिकॉज इनका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहता है, दे कम विद हायर रिस्क एंड दैट इज वेयर आपको वो अग्रेशन मिलता है। बट अगर आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं, इन दैट केस ये आपको रिवॉर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग देती हैं। तो अगर मैं आपको 2-3 नाम बताना चाहूं तो आप मिड कैप में से एडलवीज मिड कैप या कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स देख सकते हैं, और स्मॉल कैप के केस में आप एसबीआई स्मॉल कैप देख सकते हैं, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल था कि आप लमसम इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि वो आप नहीं करिएगा। आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मतलब आई एम अज्यूमिंग आप अभी ये 7 साल से एसआईपी के ही माध्यम से कर रहे होंगे। इससे रहता क्या है कि जब इस तरीके की मार्केट फॉल दिखती है ना, तो आपको वो जो आप कंटिन्यूटी धीरे धीरे रखते हैं वो आप बीच में रोकते नहीं है। बेसिकली एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से जब आप कर रहे होते हैं, हो सकता है आगे जाकर वो मार्केट टाइमिंग आपको फायदेमंद रहे, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कुछ इतना नुकसान हो जाए कि डर के मारे आप मार्केट से बाहर ही निकल जाएं। तो एसआईपी करना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहता है। We now welcome from Jaipur Jitendra. Jitendra, welcome. Please ask your question. हाँ, यस थैंक यू मैडम। अच्छा स्नेहा मैडम, कल हमारी बात मार्केट मंत्र में हुई थी, तो मैंने सेक्टर पूछा था कि किस सेक्टर में हमको अभी एसआईपी करना चाहिए, मतलब इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट, मतलब डीमैट के थ्रू। तो वहाँ मतलब गेस्ट जी ने बताया कि भाई जैसे डिफेंस का है, एफएमसीजी का है और रिन्यूएबल एनर्जी और ये जो मोटर व्हीकल वाला, ये 4 है। तो मैं ये सोचा कि मैं वहां चूज करूं, तो क्यों नहीं म्यूचुअल फंड में सेक्टोरल फंड कोई ऐसा है तो आप हमको बता दी, चारों से लिंक अप हो। ऐसे मेरा एक मल्टी कैप का जो है एसआईपी जाता है, लेकिन कल के बाद से हमको 4 सेक्टर में पैसा डालना, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से चाहते हैं। जी, तो जो आप सेक्टर बता रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपना, अगर रिवॉर्ड भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन सेक्टर, तो आप अपना रिस्क भी उसी सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। और अभी की जो मार्केट फॉल है उसमें ये देखा गया है कि ये जो सेक्टर कॉम्पोजिट म्यूचुअल फंड्स रहते हैं वो अगर आपको बेहतरीन रिटर्न देते हैं तो वो काफी ज्यादा गिर भी सकते हैं, और अगर आप सोलली उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसके इसी टाइप के नुकसान रह सकते हैं। आपने बोला आप मल्टी कैप में करते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो आपका कोर पोर्टफोलियो रहेगा। वैसे काफी सारे इन्हीं सेक्टर्स की कंपनीज का एक्सपोजर आपको ऑलरेडी मल्टी कैप से भी मिल रहा होगा, बिकॉज मल्टी कैप एक ऐसा फंड कैटेगरी हो जाती है जहां पे कोई लिमिट ही नहीं है फंड मैनेजर के पास कि आपको इसी सेक्टर से लेना है, नहीं लेना, इसी कंपनी में डालना है, नहीं रहना। वहां पे एकदम कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें ऑलरेडी फंड मैनेजर्स जो सेक्टर उनके अकॉर्डिंग अच्छा करेगा लंबे समय में, उसमें इन्वेस्ट कर ही रहे होते हैं। बट अगर आप फिर भी सेक्टोरल फंड्स में करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा नहीं करेगा, पर मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप वैल्यू रिसर्च online.com पर जाकर डिफेंस नाम से या फिर ईवी जैसे आप कह रहे हैं, इन नाम से सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको फंड्स मिलेंगे। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इन
इन फंड्स को काफी कम समय हुआ है मार्केट में आए हुए। ज्यादा बेहतर ये रहता है कि कोई फंड अपना एक तजुर्बा बना ले अप साइकिल ऑफ द मार्केट में, डाउन साइकिल ऑफ द मार्केट में, और फिर हम इन्वेस्ट करें। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। और दिल्ली से राजेंद्र अब वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। राजेंद्र जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप हमारी एक्सपर्ट से। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की अलॉटमेंट जो ETF नहीं है वो अपने डीमैट अकाउंट में ले ली थी। अब रिडीम कराने के लिए डीमैट में जो प्रोसीजर है वो बहुत कम्बरसम है, DP के थ्रू होती है। तो कोई ऐसा तरीका है कि ये डीमैट से ये होल्डिंग नॉर्मल म्यूचुअल फंड में करा दी जाए जिससे मैं अपने आप रिडीम कर सकूं? अच्छा, तो सर ऐसा हो सकता है कि आप स्विच कर पाएं SOA फॉर्मेट जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। बेसिकली इसके लिए आपको, मेरी इस पे जानकारी लिमिटेड है बट जितनी जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप अपने DP, जैसे आपने बोला, जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होएगा, बेसिकली एंटिटी जो आपका डीमैट अकाउंट मैनेज कर रही है, उनको कांटेक्ट करना होगा और एक रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जो आपको अपने हर म्यूचुअल फंड के लिए जिसको आप रीमटेरियलाइज करना चाह रहे हैं डीमटेरियलाइज से, उसके लिए वो फॉर्म फिल करना होता है और कुछ एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड जैसी चीजों को सेल्फ अटेस्ट करके भी देना होता है। एंड आपके DP ये सब डिटेल्स वेरीफाई करेंगे फॉर्म में, और फंड हाउस या फिर जो RTA होते हैं, बेसिकली जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं AMCs के साथ, उनको आगे देते हैं। और एक बार ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर आपकी वो इन्वेस्टमेंट्स स्विच हो जाएंगी टू दी SOA मेथड। मेरी जानकारी इस पे इतनी ही है। मैं आपको बोलूंगी आप फिर भी एक बार अपने DP से कॉन्टैक्ट करके ये जो रीमटेरियलाइजेशन फॉर्म है वो लीजिएगा। We now welcome from Noida, Suresh. Suresh, please ask your question. स्नेहा मैडम, मेरा नमस्कार आपको। जी नमस्कार। मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी एज लगभग 70 इयर्स है। तो मैंने क्या है पिछले 10-12 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट। लगभग 50 to 60 लाख की अभी मेरी वर्थ ये है। तो मैडम, मुझे अभी पैसों की जरूरत थी रेकरिंग बेसिस पे, लगभग 1 लाख रुपीस पर मंथ। तो मैं इसको करने ही वाला था इक्विटी डाइवर्सिफाइड से डेट फंड में, बट मार्केट गिरना शुरू हो गया तो मैंने वेट किया तो और ज्यादा मार्केट गिर गया। तो अभी आपकी क्या सलाह रहेगी? मुझे अभी रेकरिंग रिक्वायरमेंट है हर मंथ अबाउट 1 लाख रुपीस पर मंथ। तो कुछ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मैडम? हाँ जी, सुरेश जी, जैसे आपने बोला कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है ही, और आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने वेट करा और फिर वो और गिर गई। अब कोई कह नहीं सकता कि कल क्या होगा, कि ये और गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो आई वुड से क्योंकि पैसों की रिक्वायरमेंट है आपको, एंड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस हमने इन्वेस्ट ही इसलिए करा था कि जब पैसों की रिक्वायरमेंट हो तब हमें कहीं और ना जाना पड़े, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमारा वहां पे सपोर्ट देंगी। तो आई वुड से कि जो आपका आज से लेकर 1 साल तक की, मतलब आप कह लीजिए एक तरीके से फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट है, ऑन अ मंथली बेसिस ना करके आप एनुअल जो आपका एक रिक्वायरमेंट है उसको तो आप डेफिनेटली डेट फंड, जिसमें आप लिक्विड फंड्स देख सकते हैं, उसमें आज मतलब अभी ही स्विच कर लीजिएगा। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कल को मार्केट उठ जाए, पर ऐसा भी हो सकता है और गिर जाए, और गिर जाएगा तो वो जो हमें थोड़ा बहुत रिग्रेट अभी हो रहा है वो और बढ़ जाएगा। बट पैसों की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी फर्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट, तो फर्स्ट ईयर की इनकम रिक्वायरमेंट उसमें डाल लीजिए, और वहां से आप धीरे धीरे SW के माध्यम से निकाल सकते हैं, ताकि आपका पहला साल एक लेस वॉलेटाइल या फिर जो काफी ही कम वॉलेटिलिटी वाला एसेट क्लास हो जाता है वहां पे रहे। और आगे जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, आई एम अज्यूमिंग अगर आप उसमें थोड़ा धीरे धीरे करके भी ट्रांसफर करते रहेंगे तो यहाँ पे आप ऑल इक्विटी से शॉर्ट ड्यूरेशन पे डाल सकते हैं, जो आपको जब अगली बार वापस 1 साल बाद जब जरूरत पड़ती है तो आप अपने शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से लिक्विड फंड में डाल पाएंगे। तो शायद सभी रिटायर्ड लोगों के लिए जो आपने बताया है ये उपयोगी होगा। और अब हमारे अगले कॉलर है मुंबई से नैनेश, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। देखिए मैडम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने म्यूचुअल फंड सेल किया है जो कि लॉन्ग टर्म है। अभी मुझे ये जानना है कि लॉन्ग टर्म पे जो टैक्सेबिलिटी रहती है वो डायरेक्ट कैपिटल गेन स्टेटमेंट से ही कर लेते हैं या फिर उसके लिए कोई अलग से कैलकुलेशन रहता है? थैंक यू।
जी नैनेश जी, बिल्कुल जो कैपिटल गेन स्टेटमेंट में आपको गेन अमाउंट दिख रहा होता है वही होता है जिसपे आपका टैक्स लगता है, जिसमें आपको वो 1.25 लाख तक फ्री मिल जाता है। और उसके बाद क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म है तो ये 1 साल से ज्यादा हो चुका होगा, तो जो इक्विटी फंड्स में 12.5% लगता है वो इस पे लगेगा। और अगले कॉलर है अमित गाजियाबाद से। अमित जी सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। So, ma'am, I have actually around 4 funds, mutual funds. Namely, first fund is like ICICI Blue Chip Fund, direct, and ICICI Value Discovery Fund, and third is Kotak Emerging Equity Fund, and fourth is Prakparik Flexi Cap Fund. So, I want to know कि I'm looking for long term only. I have already invested for last around more than 5 years. But I want to continue with this investment in the long run. So I want to know whether these funds are okay or need to change with as per this market which is now falling. So all NAVs are also falling. So I need to continue or need to change, modify my portfolio. Thank you. अमित जी, आपके चारों फंड्स जिनका आपने नाम लिया वो काफी बेहतरीन फंड्स हैं। वो अभी के फॉल में भी बहुत ज्यादा सफर नहीं कर रहे हैं, वो लंबे समय में भी अच्छा करते आए हैं। और अभी हाल फिलहाल अगर आप लास्ट का 1 साल भी देखते हैं उसमें भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। आपने काफी अच्छी सिलेक्शन करी हुई है कि आपने AMC लेवल पे भी डाइवर्सिफिकेशन करी हुई है, और आपके पोर्टफोलियो में जो एक स्टाइल डाइवर्सिटी होती है, वैल्यू फंड और जो एक ग्रोथ फंड्स की डाइवर्सिटी होती है वो भी मौजूद है। आई वुड से कि इस मार्केट फॉल या ये जो प्राइस मूवमेंट्स हो रहे हैं उन पे आप ध्यान भी ना दीजिए, और आप जो ये 4 फंड्स में कर रहे हैं उन पे बने रहिए। आई एम होपिंग कि आप SIP के माध्यम से इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। Welcoming from Ghaziabad, Gaurav. Gaurav, please ask your question. Madam, in current scenario, we are investing in short-term fund for a lump sum, and then switching in next 18 months into large and mid-cap SBI and Mira Set Flexi Cap. Is this right strategy for say, because we expect this, I expect, or do you expect this market to turn around considering in 18 months, or we should take a longer view, not 18 months, for example 5 lakhs invested and spread it in 18 months or maybe 2 years? What is the correct estimate or correct way? Thank you. Right. So Gaurav, I would say I don't really have a view regarding the aspect as to till when this market fall will continue or when the markets will rise, because history tells us that market can rise post recover 2 days from the fall date, or let's say a year, 2 years from the fall date. So markets can't really be predicted. What we can do actually is to like you are saying that you are investing through STP, which is a very good method, way to invest in a fund, because you are breaking your lump sum investments into, smaller and periodic investments that helps in forming this kind of regularity which is required in, such downturn cases. Because often investors, like I was mentioning earlier also, they fear that market is going to continue fall and they stop their periodic investments. But since you are continuing with it, I would say you should continue investing, because spreading your investments over a reasonably, let's say 1.5 year period is something that is important, because it takes us a while to accumulate our savings, right? And investing them in one shot just to see that the market falls and your savings drop is something that does not really psychologically aligns well with you. So I would say that you are investing in equity, breaking your investments into shorter amounts and investing is a good strategy. अगले कॉलर के पास चलने से पहले बता दें कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने पारदर्शिता, कारगरता और समावेशिता को बढ़ावा देकर देश में सार्वजनिक खरीदारी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। भारत में सार्वजनिक खरीदारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GEM 9 अगस्त को शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य सरकारी खरीदारी के लिए एक खुला और पारदर्शी मंच स्थापित करना है। स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त करने वाला GEM आर्थिक वृद्धि और सामाजिक
समानता को बढ़ावा देता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार GEM की स्वायत्त स्टार्टअप रनवे 2.0 और वुमनिया जैसी रणनीतिक पहलों ने व्यापार करने की सहजता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सरकारी खरीद में भागीदारी को विस्तार दिया है। और अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर SD खन्ना गुरुग्राम से। मिस्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। थैंक यू। मेरे पास दो हैं ये म्यूचुअल फंड के। पहला है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और इसी के पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। ये फंड जो है दिसंबर में शुरू हुआ था और इसमें जो है मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 21,000 की है और इसका नेट ए भी कम हो गया है और इसकी करंट वैल्यू जो है 15,000 रह गई है। तो ये एक कैसा है ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड? एक तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाला आपसे बात करता हूँ। जी, SD खन्ना जी, जैसे आपने बताया ये निफ्टी 500 मोमेंटम फंड जो है ये काफी नया फंड है। ये दिसंबर, जैसे आप बता रहे हैं, उसी में लॉन्च हुआ है। एक्चुअली फंड हाउसेस काफी ज्यादा पैसिव फंड्स ला रहे हैं, डिफरेंट काइंड के फैक्टर्स पे वो प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैक्टर उन्होंने चूज करा हुआ है वो मोमेंटम है। ये बेसिकली करते क्या है, इनका यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। जैसे आपने बोला निफ्टी 500 का, 500 में लार्ज मिड स्मॉल सारी कंपनीज आ जाती हैं। उसमें से ये कुछ अपने रूल्स लगा के उन स्टॉक्स को पिक करते हैं जो काफी ज्यादा ऑलरेडी प्राइस अप्रिसिएशन देख चुके होते हैं और उनको उम्मीद होती है कि ये आगे भी इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहेंगे। तो बेसिकली ये थ्राइव करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग गेट्स स्ट्रॉन्गर, और उसमें से ये 50 स्टॉक्स पिक करके ये इंडेक्स चलता है। तो क्योंकि ये नया फंड है तो ये कैसा कर रहा है वो अभी इसकी हिस्ट्री बन रही है, तो उस पर तो मैं उतना ही कमेंट कर सकती हूँ जितना अभी दिख रहा है। और दिख ये रहा है कि जैसे आप बता रहे हैं ये फंड, अगर हम इसको एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करें जिनका यूनिवर्स भी निफ्टी 500 होता है, तो ये फंड आप कह सकते हैं एक तरीके से उनसे दुगना गिर गया है। वो इसीलिए है क्योंकि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड फंड है कि 50 तक के ही स्टॉक्स रखता है ये, और जो इन्होंने जो स्ट्रैटेजी यूज करी हुई थी वो स्ट्रैटेजी के लिए लग रहा है कि अभी की जो मार्केट है दैट इज नॉट कंड्यूसिव इनफ। बट आई वुड से सिंस यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इट एंड होपफुली ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं है, तो इस समय निकालना शायद से सही नहीं रहेगा। So before we welcome you, Dinesh, I think Dinesh is... so Dinesh, before we welcome you, thank you for coming on to our program. Sneha, you wanted to say something about one of the previous callers. Right. Yes, so I forgot to mention one thing to Gaurav from Ghaziabad. He had mentioned that he has been investing in SBI Large and Mid, which is a decent fund, but another fund that he mentioned was Mirai Asset Flexi Cap. There I would say since he's still building his portfolio there, that is a very new fund, and in the Flexi Cap domain there are a few funds which have some considerably good track record. Maybe instead of a new fund, he can look at a fund which has a decent track record. An example can be Parag Parikh Flexi Cap or Franklin Flexi Cap or HDFC Flexi Cap. Okay, great. And I'm sure other than Gaurav, this information is useful for all our listeners. Dinesh, please ask your question. Welcome. नमस्कार मैडम, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। मैं इक्विटी में तो काफी सालों से इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन ए बिग वे आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन फॉर द लास्ट 1.5 years। तो मैं एवरी वीक एक लमसम अमाउंट खरीद लेता हूँ जो मेरे 5 म्यूचुअल फंड में स्प्रेड है, जो लार्ज एंड मिड कैप नेचर के हैं, और 5 सेक्टोरल फंड्स है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि लास्ट 6 months में जो भी म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा डाला था वो नेगेटिव में चला गया है और मार्केट गिरता जा रहा है। और आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन दी फॉलिंग मार्केट ऑल्सो, लेकिन फॉलिंग मार्केट का एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है लोअर एनएवी का, क्योंकि मार्केट इज नॉट स्टेबलाइजिंग एट लोअर लेवल। तो क्या ऐसा स्ट्रेटेजी पॉसिबल है कि जितना परसेंटेज या जितना ज्यादा मार्केट गिरता है हम लमसम अमाउंट अगर एवरी वीक भी लेते हैं तो उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाए ताकि उसका फॉलिंग मार्केट का एडवांटेज मिल सके? क्या ये स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल है? दिनेश जी,
ये वाली जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं ये सस्टेनेबल है या नहीं, वो एक्चुअली आपको वक्त ही बताएगा, बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं दे आर रियली एन एलिमेंट ऑफ मार्केट टाइमिंग। तो मार्केट को टाइम करना काफी टफ रहता है, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स रहते हैं जो ये अचीव नहीं कर पाते हैं, और इससे हो क्या जाता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लॉस क्रिएट हो सकता है अगर मार्केट राइज हो जाती है इन अ सस्टेन्ड मैनर, और आप मान लीजिए आपका पैसा बाहर ही रह जाता है मार्केट से और वो इन्वेस्टेड नहीं रहता है। आई वुड से जो मैं आपको एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी यहाँ पे सजेस्ट कर सकती हूँ वो ये रहेगी, आप जैसे बता रहे हैं कि आप काफी सालों से इक्विटी मार्केट एज अ होल में इन्वेस्टेड हैं, तो आई एम श्योर आप स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग में रहे होंगे। ये जो टाइमिंग वाला और लमसम इन्वेस्टिंग वाला एस्पेक्ट है, मे बी आप ये वाला स्ट्रैटेजीज स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग के टाइम पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे एक कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जान के परख के ये चीज को अप्रोच कर सकते हैं। आई वुड से फॉर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि पहली बात तो आप अभी अभी उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है आपने, तो आई वुड से आप SIP के माध्यम से इसमें बने रहिए। आप ये जो स्ट्रैटेजीज यूज करना चाह रहे हैं ये आप स्टॉक मार्केट में करिए, कुछ आगे 10-15 साल के बाद आकर आपको पता चलेगा कि आपके स्टॉक्स भी बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी उस पर वर्क करती है। और म्यूचुअल फंड्स बिकॉज आप साइलेंटली उसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी आपको अच्छा रिवॉर्ड दे देंगी। फ्रॉम हैदराबाद, सौरभ, वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good evening, Market Mantra. Good evening. Firstly, I want to ask, do all STPs invest in their initial lump sum in debt and then they do subsequent SIP from the STP amount in equity? And can you name please 1 or 2 STPs and how to procure them from if I have a Demat account? Thank you. Right. So STP is, as the full form says, systematic transfer plan that can be from any asset class to any asset class. So from equity to equity, that is definitely a possibility, because the strategy involves moving money from one equity fund to another fund. The caveat here is the fact that it has to be within the same fund house. So example as such can be you pick 2 equity funds from the same fund house and you transfer your money from one to the other. दिल्ली से बैजनाथ है हमारे साथ, जल्दी से अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। मेरा एक म्यूचुअल फंड में एक्सिस मिड कैप, HDFC म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी रेगुलर ग्रोथ, SBI ब्लू चिप, SBI स्मॉल कैप, SBI इक्विटी हाइब्रिड ग्रोथ है, तो ये फंड है और मैं इसके साथ बने रहे या फिर और कोई चेंज करने की जरूरत है? धन्यवाद जी। बैजनाथ, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने मुझे काफी सारे फंड्स गिनवा दिए, बट इसमें जो एक चीज मुझे दिखी कि वो आप एक पर्टिकुलर AMC जो SBI है उसमें काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो आई वुड से कि उसको आप देखिएगा कि आप एक ही AMC में ही ज्यादा करना चाहते हैं या आप इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, बिकॉज डाइवर्सिफाई करना हमेशा हेल्प करता है। कोई AMC अगर किसी बुरे दौर से गुजर रही होती है तो उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में लिमिट हो पाता है बेसिकली। तो जो आपने फंड्स बताए जिनका मैं नोट कर पाई, वो बेसिकली आपने मिड और स्मॉल कैप से फंड्स बताए थे। एक फंड आपने सेक्टोरल फंड बताया था, टेक्नोलॉजी। आई वुड से कि आप इस सेक्टोरल फंड को अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं एलोकेट करिएगा। ज्यादा बेहतर रहता है कि अगर आप मिड, स्मॉल और लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनीज में फंड्स में इन्वेस्ट करें अपने कोर पोर्टफोलियो के लिए, तो वो सही रहेगा। बाकी आप इनमें SIP के माध्यम से बस बने रहिएगा। We now take a look at the oil prices. Global crude oil prices registered the first monthly drop since November as markets watched an Oval Office argument between the US and Ukrainian presidents, while also bracing for Washington's new tariffs and Iraq's decision to resume oil exports from the Kurdistan region. Brent crude oil prices declined 1.6% last week to end the week at $73.18 a barrel on Friday, and the US crude lost 1.3% during the week to finish at $69.76 a barrel. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें अपने
अपने कॉल्स के सिलसिले को भी यहीं समाप्त करना होगा। स्नेहा जी, आप आई और आपने हमारे सभी श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely. Thank you, Sneha. And before we close, a look at the headlines. After 8 sessions of consecutive decline, domestic markets to focus on monthly auto sales, tariff announcements and other global indicators for cues next week. Government e-marketplace GEM initiatives have contributed significantly to the ease of doing business, says Ministry of Commerce and Industry. And global crude oil prices register first monthly fall since November. Brent falls to $73 per barrel. And that's all for today. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.